ठीक है। जय आरसीएम, जय आरसीएम। अगरबत्ती तो साइड में चलिए सर, आज हम लोग एक विकास जी का यहाँ एक डिस्प्ले वॉल का ओपनिंग कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये दुकान बहुत बढ़िया चले और हम लोग का एक टीम बिल्डिंग में मदद करें। ठीक है सर। जय आरसीएम। होल्डिंग कर दी। এখন তো কন্যা খাবার জিনিস ये बुलाया गया है आज विकास जी की तरफ से कि एक छोटा सा दुकान ओपनिंग किया गया है। और वैसे आप लोगों की ज़रूरत का सभी सामान रहेगा, लेकिन आरसीएम की तरफ से कुछ प्रोडक्ट हमारे हैं जो आपके हेल्थ के लिए बढ़िया रहेगा। जो भी सामान आप यहाँ से खरीदेंगे इस बात का गारंटी दिया जाएगा कि सामान मिलावटी नहीं होगा। सबसे पहले आपको हेल्थ को फ़ायदा मिलेगा, और अगर आपको इसका प्रोडक्ट अच्छा लगे फिर ज्वाइनिंग कैसे करना है इसके बारे में फिर हम लोग मिल के कभी भी बात कर सकते हैं। पहले इसमें प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए, आप फ़ायदा मिलेगा, और अगर कोई प्रोडक्ट आपको अच्छा ना लगे तो रिटर्न करके जाइएगा। हाँ, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। আমাদের এটা হচ্ছে একটা বিজনেস, আরসিএম বিজনেস এর নাম ঠিক আছে। এটাই হচ্ছে একটা মেন মন্ত্র আছে কি রাশন খাও পয়সা কামাও। আজ তো আমরা 20 বছর 30 বছর থেকে বহুত কিছু খাইছি, একটা দোকানে উঠানা করেছি, বহুত কিছু ইনভেস্ট করেছি, কিন্তু কিছু প্রফিট নাই। ঠিক আছে। আর আমি এই বিজনেসটাকে পাইছি মনোজের থ্রুতে। মনোজ আমাকে জয়েনিং করেছিল। আমি রেলওয়েতে চাকরিও করি। ঠিক আছে। কেউ বলে ছাড়ও দিয়েছে লাগভগ। ঠিক আছে। এই বিজনেসটার পাওয়ার এতটা আছে যে আমি একটা সরকারি চাকরি সুদ্ধা ছাড়ি দিতে পারছি। এই বিজনেসটা কি হচ্ছে বহুত কিছু আছে যে আমাদের একটা সিনিয়র আছে সে মহাগুরু কারে আছে সে দেখবে। ঠিক আছে। ও বাতাবে কি কেমন করে আসবে, কিসে আসবে। ঠিক আছে। ও আমাদের এখানে লোকালেরই বটে, সুতরি বটে, ঘর বটে, রণবিজয় গোপ স্যার বটে। ওর জন্য একবার জোরদার তালি দাও। ওর যে বেশ কিছু সময় আমাদেরকে দিতে আসছে, একটা ছোট দোকান থেকে স্টার্ট করে এত বড় পুঁজিপতি তক বনলো, কেমন করে বনলো সব কিছু বাতাবে। আর এই বিজনেসটা আমার রয়্যালটি আছে, মানে মরে গেল পয়সা। আর রয়্যালটির অরিজিনাল মিনিং হলো কাজ করো একবার আর পয়সা পাও বারবার। আমরা দুনিয়ায় কাজ কি করি, কেউ পড়াছে, কেউ লেখাছে, কেউ কোনো বিজনেস করছে, কিন্তু যখন ওই লোকটার যখন প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে তখন কি হচ্ছে ওর ঘর ডামাডোল হয়ে যাচ্ছে। দুদিন যদি জ্বরে পড়ে যাচ্ছে মেন লোকটা, ঘরের যে খুঁটা যদি ও জ্বরে পড়ে যাচ্ছে তো ওর ইনকাম অফসোর্স ঘটে যাচ্ছে। আজ কাল কি খাবো, পরশু কি খাবো, দাওয়া আছে, দারু আছে, বহুত কিছু আছে যেমন আছে, তো সবকিছুই আমাদের ইনভেস্ট হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ফের যখন ও রিকভার হচ্ছে বিমারি থেকে তখন ফের ও আগে যাইতে হচ্ছে কি আমি কাজ করি। কিন্তু যতদিন কাজ করছে অতদিনই পয়সা। কিন্তু এখানে আমরা একটা শিখবো কি আমরা একবার কাজ করে চলে যাবো, আমরা যদি মরেও গেলি তাও পয়সা কেমন করে আসবে সেটা আমাদের সিনিয়রে বলবে, আর সেটাই বলাবার জন্য আমরা ওদেরকে ডেকেছি। ঠিক আছে। আর আমি এই বিজনেসটাকে কেন করছি আর কেমন ভাবে ভালো লাগলো সেটা আমি একটু তোমাদেরকে বলি। দেখো আমাদের সবাই যেন আমরা সবাই এখানে বলি। ঠিক আছে। যেটা ভালো লাগবে সেটা তোমাদেরকে রাখবার আছে, আর যেটা আমার কথাটা খারাপ লাগবে সেটাকে ছেড়ে দেবার আছে। সেটা খারাপ জিনিস নিবার নেই। যেমন এখন বললো কি তেলটা, আরসিএম এর তেল নাই, আরসিএম এ গুড মর্নিং মানে সকাল থেকে নিয়ে রাত তক ঘুমাবার তক সামান পাওয়া। আমি যে উপর থেকে নামো তক পড়িয়ে আছি, খালি টপিটা বাদ দিয়ে সব আরসিএম এর বটে, চশমাটা ছেড়ে এই জ্যাকেটটা আরসিএম এর বটে, প্যান্টটা বটে, মোজাটা বটে, জুতাটা বটে, পার্সটা বটে, আর পার্সটার ভিতরে যে পয়সাটা আছে সেটাও আরসিএম এর বটে। এই পার্সটা সবুত আছে, লোগো আছে পার্সটাই যে আরসিএম এরই বটে। আগে অন্য কোম্পানির রাখতে এখানটা এটা মোটে 250 টাকা নিয়েছে। আগেবার একটা নিয়েছিলি শ্রীলেদারে 550 টাকা নিয়েছে, আর এটা 250 টাকা নিলি তো এটা 250 টাকা আমার 25 টাকা কমিশনও আইলো ব্যাংকে। ঠিক আছে। কেমন ভাবে পয়সা আসবে আর এই বিজনেসটাকে কেন করতে হবে সেটা সব আমাদের সিনিয়ররা বলবে। রণবিজয় গোপ স্যার নাম বটে, ছুতরিপাড়ায় ঘর বটে। আর এই বিজনেসটাকে 4 বছর 5 বছর থেকে করলো, আর একটা ছোট যেটা ঘরের অবস্থা বহুত খারাপ সেখান থেকে স্টার্ট করে নিয়ে কার তক কেমন করে মেইনটেনেন্স করছে সবকিছু তোমাদের সঙ্গে বলবো। আর এই বিজনেসটা করলে কি কি বেনিফিট হবে সবকিছু তোমাদেরকে বাতাবে। এই যে এই তেলটা,
এই তেলটাই বললো, ঠিক আছে? এই তেলটার দাম হচ্ছে 197 টাকা ডিপি, কিন্তু এমআরপি আছে এখন 300 টাকা। এই তেলটা খেলে তোমার গ্যাস বিমারি ঠিক হয়ে যাবে। এই তেলটায় বহুত কিছু বেনিফিট আছে, বহুত কিছু, যেটা আমাদের সিনিয়ররা বলবে, ঠিক আছে? কিন্তু আজ তো আমরা কোনো না কোনো দোকানে তো সামান কিনি, সামান কেনার পরে কি হয় কি যেমন উঠানা আছে কি না, কার দোকানে উঠানা নেই, সবার দোকানে আছে। আমরা জানি কি ও অমুকের দোকানে সামানটা বহুত ফ্রেশ পাওয়া, কিন্তু যখন তুমি যখন বউকে 500 টাকার নোট দিয়েছো, যখন ও তোমার মামা হোক, কাকা হোক, জেঠা হোক, কি ও ড্রয়ারতে ভরে নিয়েছে 500 টাকার নোটটা? নাই ভরে, এমনি করে দেখে হবে, তারপরে ভরেছে। কিন্তু আমার শিশিতে যখন ও সাঁচি তেলটা ভরে দিছে, বলে 1 নম্বর ডবল হাতি তেল বটে। আমি কি ছুঁয়ে দেখলি কি তেলটা ডবল হাতি বটে? আমার বিশ্বাস আছে কি না ও ভালো তেল দিল, কি তিনটে ও মিক্স করেছে কি না। আগে যখন তোমরা ছোট ছিলে, আমরা ছোট ছিলি, মনে আছে দিদিমাই যখন তেল মাখাইছে তখন কান্না বাজে, এখন তেলটা লাগাচ্ছি কোনো কান্না নাই। কেনে কেনে কেন না ডুপ্লিকেট। আমাদের এই কোম্পানির সব জিনিস অরিজিনাল 100%। যদি কোনো জিনিস ডুপ্লিকেট হয় তো কেস করে দাও, কোম্পানি মুমাগা কিমত দেবে। 1977 কোম্পানি বটে, ফ্যাশন শুটিং প্রাইভেট লিমিটেড নাম বটে, আর ইয়ার কনসেপ্টের নাম দিয়েছে আরসিএম, ঠিক আছে? আমি এতটুকু আজ বলবো, বেশি সময় নেব না, কেন দেরি হয়ে গেছে আমাদের, 2টার স্টার্ট করাবার ছিল, 3:45 বাজে গেছে, ঠিক আছে? আরো জায়গায় স্যার টাইম লিয়া আছে, তো স্যারকে আমি বেশি দেরি করে না করে, তোমরা একবার উঠতে তো বলবো না, জায়গা কম আছে, কিন্তু ওখান থেকে স্যারকে একবার হাততালি দিয়ে ওয়েলকাম করো। খাদ্য জিনিসটা আমরা সব পাবো না, এক মিনিট ছিল এরপরে সে দেখো আমরা তো সেই গরু টরু চাষা ভুষা মানুষ, তো যেমন ছোটও থাকে সেইটা সব ছোট সামান থেকে ছোট আইটেম বেশি হয় সেইগুলা বলছি। না, সব কিছু আমরা কি আর গোটাটা নিতে পারবো কেজি কেজি? সেইটা বলো। আমাদের সিনিয়রে বললো ছোট পাবো যাবে না তেল তুমি ইয়ার পরে দেখো, হ্যাঁ বাস, ইয়ার পরে এই স্যার আমাদের রয়্যালটি অ্যাচিভ করে নিয়েছে। রয়্যালটির মানে হইলো কি কাজ করেছে একবার, ইয়ার পরে যদি স্যার মরেও যায়, স্যার যদি মরেও যায় তো স্যারের যে নমিনি আছে, হ্যাঁ যে পেমেন্টটা এখন ইনি উঠাছে, ঠিক, সেই পেমেন্টটা ইয়ার ঘরে যে নমিনি আছে সে উঠাবে। সেটা ঠিক, ইয়ার পরে যদি ও মরে যায়, হ্যাঁ তোমার যে নমিনি থাকবে কেমনে করে 7 পিঢ়ি তক পয়সাটা পাবে। আচ্ছা, এত সুন্দর বিজনেস করে, হুম, আর সেটা আগে বাড়াবার জন্য রণবিজয় স্যারকে আমি ডাকছি। জয় আরসিএম, ধন্যবাদ। नमस्कार सभी को। नमस्कार सर। मेरा परिचय हुआ, नाम है रणविजय कुमार को, इसी सुत्रीबड़ा लोकल है चंदन क्यारी से। अच्छा, पिछले 4-5 साल पहले हम आरसीएम बिजनेस किए, जो आपको बताया जा रहा है। कोई भी अच्छे चीज को बताने के लिए एक माहौल तैयार किया जाता है, अच्छा, और कभी भी जब अच्छे चीज के बारे में जब बताया जाता है तो लोग वहाँ कम पहुँचते हैं। तो बात सही है। और एक चीज हम ये भी सीखे हैं कि जब किसी चीज को एक अच्छे माहौल में ढाला जाए, जब किसी काम के अच्छे परिणाम आ सकते हैं, तो वहाँ लोग ज्यादा सवाल करते हैं। ये भी हम देखे हैं कि पिछले 4-5 साल में बहुत तरह के लोगों से हम मिले हैं, और एक आदमी आता है आपसे बताता है कि भाई साहब आपको कुछ नहीं करना है, बस 15,000 दे दीजिए, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, हर महीना आपके घर में 5-5 हज़ार आएगा। अगर आपके पास पैसा ना भी हो, जैसे अभी अंकल जी बोले कि हम लोग गरीब लोग हैं, तो बकरी भी बेचना पड़े तो बकरी भी बेच दिया जाएगा, बैल भी बेचना पड़े बेच दिया जाता है, क्योंकि चंदन क्यारी एरिया जो है हमारा पिछड़ी एरिया में आता है। आता है कि नहीं आता है? और हमें अगर कोई आदमी बेवकूफ बनाने के ऊपर सिर्फ आ जाए कि बस इसको बेवकूफ बनाना है, तो हम और आप बन भी जाते हैं। कई बार हम ऐसा देखे पिछले 4-5 साल में कि पैसा आदमी के घर से चला गया है। बहुत सारा कंपनी आज हमारे बीच ऐसा है, अगर हम आप लोगों से बोलेंगे ना, तो जितने भी आदमी बैठे हैं सबका किसी न किसी कंपनी के साथ दुख जुड़ा हुआ है। आप बोलिएगा ये कंपनी मेरा 10,000 ले गया, ये कंपनी मेरा 20,000 ले गया, ये कंपनी मेरा 5,000 लेके चला गया। लेकिन आज हम आप लोग के बीच एक ऐसा कंपनी के बारे में बताने आए हैं, यहाँ आपको जिंदगी में अब तक का इतिहास में 20 साल के इतिहास में एक आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको बताएगा आरसीएम से मेरा 5,000 डूब गया। कमाया नहीं वो अलग बात है, लेकिन डूबा नहीं है ये भी सत्य है। मार्केटिंग में भी जाना जरूरी है कि नहीं है? और किसी भी चीज में पैसा कमाने के लिए सब दिमाग तो लगेगा ही। हाँ। दुनिया के किसी भी क्षेत्र में अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कुछ भी काम, साइकिल एक मिस्त्री बनना, जैसे चेन आपका उतर जाए, किसी नट को टाइट कर लेना, ये हम और आप कर सकते हैं कि नहीं? लेकिन इस काम को करने के वजह से कस्टमर आपको पैसा नहीं देगा। देगा क्या?
नहीं देगा। अगर हम और आप बीमार पड़ जाते हैं, कि बीमार पड़ने से हमको मालूम है ना पैरासीटामोल खा लेने से ठीक हो जाएगा, अगर यही चीज आप किसी दूसरे आदमी को बताते रहो, वो दवा ले लेता है, क्या सर आपको फीस देगा वो? जबकि डॉक्टर भी वही दवा लिखेगा बीमार होने पर, है कि नहीं? अगर आपका और हमारा मोबाइल खराब हो जाए, आपको मालूम है कि यहाँ माइक बदलना है, हो सकता है तो सोल्डिंग करके माइक बदल भी देते हैं आप, लेकिन अगर आप मोबाइल का कोर्स नहीं किए हैं और अगर मोबाइल ठीक भी कर देते हैं, आपको पैसा नहीं देगा वो आदमी। इसलिए नहीं देगा, अगर ये ठीक कर सकता है तो मतलब खराबी नहीं हुआ था। लोगों का भरोसा ये होता है ना। जब तक सर हम डॉक्टर घर नहीं जाते, जब तक वो हमारे एक्सरे नहीं करता, एक्सरे नहीं करने के बाद जब तक वो 15,000 का बिल नहीं बनाता है ना, तो फिर पैसा हमको लगता ही नहीं है। इसी तरह से सर ये आरसीएम है। आरसीएम में जब हम और आप आते हैं, कुछ लगता नहीं है सर, बस इसमें जो पैसा कमाना है और आरसीएम का क्या फायदा, यही हम आप लोगों के बीच बताने आए हैं। सर पिछले 10 से 12 साल से मेरा रामडी मोड़ में मेरा दुकान है मोबाइल रिपेयरिंग का। इससे पहले हम दिल्ली में काम करते थे। दुनिया में कहीं भी रहिए सर, काम करके ही पैसा आता है, यही है ना। काम करने के वजह से ही हमारे घर में पैसा आता है। कोई भी कितना ही टैलेंटेड आदमी क्यों ना हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, इंजीनियर हो, लेबर हो, वर्कर हो, मिस्त्री हो, सबके साथ यही कहानी है। जिस दिन हमारा काम बंद हो जाता है, उस दिन हमारा इनकम भी बंद हो जाता है। है कि नहीं? कोई आदमी, इसका कारण हम बता दे रहे हैं सर, 10 साल से मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं। आज दुकान मेरा बंद है, शटर बंद है, अभी हम यहाँ आए हैं, क्या सर पैसा आएगा दुकान में? कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, आप लोग में से कोई ऐसा आदमी है जो काम नहीं कर रहा और उसके घर में पैसा आता है? बिगड़ काम से पैसा आएगा? नहीं आता है, यही है ना। लेकिन पूरी दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिसका काम बंद होने के बाद भी पैसा आता है। जैसे अंकल जी बोले कि बिना काम के पैसा कैसे आएगा, उनको जहां तक जानकारी है वहां तक वो सही बोले हैं। लेकिन पूरी दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका काम अगर बंद भी हो जाए लेकिन फिर भी पैसा आता है सर। उसको बोला जाता है रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में 3 लोगों को मिलता है सर। एक हो गया सर हमारे लेखक। आप लोग जानते होंगे, कोई लेखक अगर कोई किताब बना देता है, छाप जाता है, उसके वजह से उसके घर में पैसा बार बार रिपीट होता है। आज प्रेमचंद जी हमारे बीच नहीं है सर, लेकिन उनके किताब स्टेशन पे मिलता है कि नहीं मिलता है? क्या सर उसके फैमिली को पैसा जाता है कि नहीं जाता है? जाता है सर पैसा उनके घर पे। दूसरे नंबर पे आते हैं सर गायक। आज मोहम्मद रफी, किशोर कुमार जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन सर हम यकीन दिलाना चाहते हैं, जो सिंगर आज जिंदा है, मेहनत करके जितना पैसा वो नहीं कमा पा रहा, उससे ज्यादा पैसा उनके परिवार वालों को उनके मरने के बाद जा रहा है। आज भी हम और आप किशोर कुमार के गाने को सुनना पसंद करते हैं। आज भी हमारा मूड अगर थोड़ा शांत होता तो मन करता सैड सॉन्ग सुन ले, किशोर कुमार जी को सुना जाए, या किशोर या मोहम्मद रफी जी को सुनते हैं। होता है कि नहीं होता है? पहले हम लोग कैसेट खरीदते थे, फिर कैसेट से सीडी आया, सीडी से मेमोरी आया। गाने को हम सुनने का ये तरीका बदला कि नहीं बदला? अभी क्या है सर? यूट्यूब। अभी सर बोलना पड़ता है किशोर कुमार का गाना, वो भी फलना वाला बोलिएगा तो फलना वाला है। मेरा बेटा है सर, उसको लिखना नहीं आता। 3-4 साल का बच्चा को क्या समझ में आता है? बोलता है कार्टून वीडियो, तोतला के बोलता है। अब आ गया, जमाना बदला कि नहीं बदला सर? और अगर हम नहीं बदलेंगे तो मोबाइल आपके पास रखा भी होगा तो वो किसी काम का नहीं है। वही मोबाइल मेरे पापा के हाथ में जाता है, गलती से कोई फोन कर देता तो फोन नहीं उठाते वो डर के मारे। उसको समझ ही नहीं आ रहा इधर लगाना ना इधर कर क्या करना है, समझ नहीं आता है। बस सही है। हम एक खुद मोबाइल मिस्त्री, मेरे पापा खुद एक टीचर, लेकिन आज भी उनके पास सैमसंग का छोटा मोबाइल है। बोलते वही मोबाइल चाहिए जो हरा बटन से उठना चाहिए और लाल बटन से कटना चाहिए, इसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। अपना दिमाग में वो सेट कर लिया, हमको नया चीज नहीं सीखना। हमारा बच्चा सर जो 2 साल 3 साल का होता है, आपका मोबाइल लॉक कर देने के बाद गलती से एक बार देख लिया है ना, वो खोल देगा वो। हम अपना बेटा को कितना बार बोले कि बेटा गेम डाउनलोड नहीं करना है, हम यहाँ डिलीट मारते हैं, वो डाउनलोड करके देखता है, खेलना शुरू कर देता है। बदला कि नहीं बदला सर? उसी तरह से सर ये गायक है हमारे बीच। अगर आप गाना गाते हैं और वो गाना अगर लोगों के दिल में बस जाता है, रिकॉर्डिंग के माध्यम से अगर हम सुनते हैं उसको, तो पैसा आता है। आता है कि नहीं आता सर? एकदम आता है। तीसरे नंबर पे आते हैं सर वैज्ञानिक। किसी चीज का अगर आप आविष्कार कर लेते हैं, बल्ब का आविष्कार किसी ने किया, किसी के माध्यम से ये मार्कर का आविष्कार हुआ, कोई इंसान था जिसने कलम का आविष्कार किया, हुआ कि नहीं सर? हर वो चीज का
सर किसी भी चीज का अगर आप आविष्कार कर सकते हैं और वो हमारे समाज के काम में आता हो, रिपीट होता हो। अब ऐसा चीज आपने आविष्कार कर लिया जो किसी का काम का ही नहीं है, फिर तो कोई मतलब नहीं रह गया ना। आप कोई चीज ऐसा बनाते हैं जो हमारे समाज के लोगों के भलाई के ऊपर वो काम होता है, और जब जब लोग उसको रिपीट करते हैं उसके वजह से उनके घर में पैसा जाता है। काम बंद होने के बाद भी लोगों के पास पैसा जाता है सर, ये मान रहे हैं कि नहीं मान रहे आप लोग? बस चौथा नंबर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम बंद हो जाने के बाद भी पैसा उसको अब मिलता ही मिलता है। ये हम पहले नहीं समझे थे, लेकिन हम समझे ये लॉकडाउन कोरोना काल में। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो भी आपके पास हर महीना पैसा आएगा। अगर आपके पास करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है, पैसा आपके पास है, बैंक में आप रख देते हैं, ये हम नहीं जानते थे पहले, हमको बाद में पता चला। कारण ये है कि बहुत सारे लोग, अगर आपको मालूम होगा, लोन लिए हैं लॉकडाउन के समय में, EMI छोड़ा नहीं है। छोड़ा है क्या? ना। अगर गलती से 4 महीने छोड़ भी दिया तो बाद में सूद समेत देना पड़ा आपको, वो ज्यादा पे करना पड़ा। कुल मिला के पैसा आपको देना पड़ा। आप नहीं बोल पाए कि लॉकडाउन का माहौल है हम पैसा नहीं देंगे, पैसा दिया गया है। इसका कारण ये है, जब बैंक से पूछा गया कि हम नहीं दे सकते हैं पैसा, बहुत सारे लोग बोले ना कि पैसा नहीं आ रहा भाई, पैसा तो लेना पड़ेगा। लेकिन वो जो अपना आदमी रखा हुआ है जिसको पैसा रिकवर करना है बाजार से, बोला भाई पैसा देने के लिए आदमी मना कर रहा है, तो बोलो उसको बोलो कि पैसा तुमने लिया है इसलिए तुमको देना पड़ेगा। जो बैंक में रखा है पैसा, हम उसको पैसा दे रहे हैं, कोई कोविड से मतलब नहीं है। जिसका पैसा 10 लाख EMI के रूप में रखा हुआ है, बैंक में इंटरेस्ट दे रहा है। अब आप बैंक में पैसा लिए हैं उधारी, तो आपको देना पड़ेगा, आप देने वाले में आप आते हैं। और जो बैंक में पैसा जमा किया है, बैंक उसको दे रहा है, उसको बैंक थोड़ी ना बोल रहा है कि भाई कोरोना लॉकडाउन में आपको EMI से नहीं मिलेगा। क्या सर ये 4 आदमी ऐसे हैं जिनका काम बंद हो जाने के बाद भी पैसा आता है? आप बीमार है तब भी EMI का पैसा आता ही आता है, आता है कि नहीं आता है? लेकिन क्या सर ये आम आदमी के लिए है क्या? जैसे हम लोग यहाँ 15-20 आदमी बैठे हैं, गायक बनना, लेखक बनना, वैज्ञानिक बनना, या हमारे अकाउंट में बहुत सारा पैसा हो, ये संभव है क्या? संभव नहीं है सर। आज बैंक 1 लाख पे 500 रुपया इंटरेस्ट देता है, अभी घटते जा रहा धीरे धीरे, पहले बहुत ज्यादा था, बहुत कम दे रहा है। 500 रुपया में घर चलेगा सर? नहीं, कम से कम आज के डेट में, मतलब अगर इंटरेस्ट का पैसा से ही मेरा घर चले, इसके लिए कम से कम 50 लाख होना चाहिए, 25 लाख से प्लस, तभी उस पैसा से हमारा घर चलेगा, वरना पता ही नहीं चलेगा पैसा कहाँ गया और हम कहाँ गए। 5वें नंबर पे सर हम एक चीज बताने आए हैं जिसका नाम है RCM, जिसके बारे में भी विकास जी बताए, जिसके बारे में भी परवीन सर बताए। इस RCM को अगर हम और आप समझ लेते हैं, 2-4 साल अगर आप मेहनत कर लेते हैं, तो आपकी जिंदगी में एक बदलाव आएगा। वो ये बदलाव आएगा कि आपका अगर काम बंद भी हो जाएगा तो आपका इनकम बंद नहीं होगा सर, जिसको बोला जाता है रॉयल्टी इनकम। और आज इस बिजनेस का हम रॉयल्टी अचीवर है। आप लोग, कुछ लोग पहचानते हैं कि नहीं पहचानते, बहुत पहले से हम यहाँ आ रहे हैं। शुरुआती समय हमारे मनोज जी यहाँ एक ही आदमी ज्वाइनिंग किए हुए थे। पहले वो एक ऐसे इंसान है जिसको हमने RCM के चंदन क्यारी में ज्वाइनिंग कराया था। अब वो हम बार बार आते थे सर, लेकिन करते गए इस बिजनेस में हमको बताया गया कि सर इस बिजनेस को अगर आप लगातार करते हैं तो आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चीज आएगा, रॉयल्टी। तो इनकम ज्यादा नहीं आता सर, इस रॉयल्टी में लगभग 20,000 से 25,000 का इनकम आता है। ये इनकम आप और हम भी कमाने वाले बहुत लोग हैं। इसी चंदन क्यारी में ऐसे लोग हैं जो एक दिन में 20,000 कमाते हैं सर। उनका व्यापार बहुत बड़ा है, बिजनेस बड़ा है, क्यों कमा नहीं सकते क्या? कमाते हैं। लेकिन सर रॉयल्टी का मतलब ये होता है कि जिस दिन आपका काम बंद भी हो जाए उस दिन भी पैसा आना चाहिए। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 2 लाख कमाने वाला आदमी के साथ भी ये फॉर्मूला काम नहीं करता, बंद हो जाता है। होता है कि नहीं होता सर? होता है। आपके चंदन क्यारी का जो सबसे बड़ा दुकानदार है, 4 महीना के लिए दुकान बंद हो जाएगा, पैसा उसका आना बंद हो जाएगा। पैसा कमाया, हम ये नहीं कर रहे हैं। तो सर हम सिर्फ पैसा बताने आपके बीच नहीं आए यहाँ पर, इस बिजनेस को करना क्यों जरूरी है ये बताने आए हैं। क्योंकि जो इम्पोर्टेंट बात है वो लोगों को बताना ही पड़ता है।